Few students like study for like 10 hours, 12 hours a day, and still they are not getting as good marks as a couple of students though who don't study that much at all. Why that difference? So the difference is because okay, today मैं 5 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हूँ सॉरी टुडे मैं ऐसी 5 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आज की डेट में अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मैं नहीं करता और वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मैं करता। 30 ईयर्स का एज है मेरा, तो ये 30 ईयर्स वाला विजडम मेरे पास अगर होता, दोज थिंग्स आई वुड हैव बीन अवॉइडेड एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स आई वुड हैव बीन टेकन as a student. Okay, so let's dive into this. This is going to be very exciting. Most of my viewers are my student. This video going to be a really valuable one for you, like those of you are student class 11th standard, 12th standard, and those of you are going to college in the same times like first year, second year, really valuable for you. The very first point is that how to learn properly. First, if you understand how to learn properly, then learning anything would be very easy. It's not like जो तुमको हर टाइम इतना enjoyable चीज़ें मिलेगा सीखने के लिए, नहीं मिलेगा. Academics is not that fun every single time. So आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी सीखना पड़ेगा, right? So अगर आपको पता लग जाए कि कैसे सीखना है, then you will take less and less time. Few students like study for like 10 hours, 12 hours a day, and still they are not getting as good marks as couple of students though who don't study that much at all. Why that difference? So the difference is because few students actually they understand how to study, how to learn anything. Okay, so let me tell you, इसका एक बैक स्टोरी है. नो बैक स्टोरी. सो एग्जैक्टली साइंस में बताता हूँ आपको. कुछ भी चीज़ें ना जब आप सीखते हो और इन्फॉर्मेशन इंजेस्ट करते हो तो हमारा टेम्पररी जो मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाता है. नाउ दिस टेम्पररी मेमोरी विल shift to your permanent memory once you learn thing perpetually. What does that mean? That means, let's say for example, you have learned something today, right? So the learning graph will become from here to here, right? Now after it depends on man to man, it depends on student to student. So after learning from here, this is the learning graph. Due time the graph going to fall down, right? नीचे आएगा ग्राफ, राइट? और ये ग्राफ कितनों को कितना जल्दी नीचे आएगा वो डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर, राइट? So let's say for example, you take 5 days to completely forget the thing that you have learned on the very first day. Okay. Now, on the 5th day, if you again go back to that information, and then you regain the graph on the same height, and this time your capacity of holding that information to your brain will become larger. For example, in the very beginning, that would have been 5 days. Then in the second slot, the 5 days would become like 10 days or 15 days. After 15 days, you will completely forget that information. Again, on that 15th day, if you again read that thing or ingest those information again, then the graph will become again the same height, and it will start decreasing, and the time span will expand. In this way, it will continue. If you do it like 5 to 6 times, this information goes to your permanent memory, right? For example, if you are listening to any song you like, you don't need to deliberately remember the lyrics, right? You can, तुमको आता है वो गाना, right? ऐसे स्कूटर चलाते चलाते, बाइक चलाते चलाते, साइकिल चलाते तुमको आता है वो गाना, राइट? तुमको ऐसे रिमेंबर नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा जो परमानेंट मेमोरी है ना उसमें शिफ्ट कर गया, और वो इन्फॉर्मेशन तुमने लिया है on a span of like 1 to 2 days. You have taken those information again and again, right? That is the exact reason that information went to your permanent brain, right? It has some detailed study. I'm just giving the summary. So what you need to do, how to study. देखो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर को पढ़ने के कुछ तरीका है. लाइक फॉर एग्जांपल, टेक 2 to 3 कलर्स ऑफ मार्कर पेन, फेवर कैसल का मार्कर होता है. तो मार्कर लेके आप बैठो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसको वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ, राइट? 4-5 दिन बाद वो हाईलाइटेड पॉइंट अगेन देखो. तुमको ना पूरा चीज़ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. जब तुम हाईलाइट पॉइंट को देखोगे तो पूरा बैक स्टोरी समझ में आ जाएगा, पूरा बैक स्टोरी तुम्हारे दिमाग में लोड हो जाएगा, राइट? तो फर्स्ट टाइम आपको अगर लगता है लाइक 1 hour, सेकेंड टाइम आपको लगेगा वो हाईलाइट पॉइंट देख के 5 to 10 minutes, and you will remember everything whatever you have learned on the very first day, right? Then आपको क्या करना है, 15 or 20 days बाद अगेन देखना है और ये करते जाना है until this information goes into your permanent memory. Okay, this is one technique. The other technique is like card method. Whenever you are learning anything from any chapter, just make one good short note, and the moment when you think that you are forgetting, like 5 days, I would say that after 3 to 4 days, try to revisit the things that you have learned on the very first day. Just
for every single day just keep 5 to 10 minutes to revisit the things that you have learned 5 days ago. Okay, 5 दिन पहले जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिविजिट करो 5 दिन बाद. ओके, और उसके लिए एक छोटा सा नोट बनाओ और एक कार्ड्स टाइप का बनाओ, छोटा एक हैंडबुक. ओके, फिजिक्स का मिलता है तो हैंडबुक तो मैं भी देता हूँ मेरे स्टूडेंट को, जो भी मैंने पढ़ा है उसका छोटा एक हैंडबुक, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर का समरी. अब अगर देखोगे तो पूरा बैक स्टोरी याद आ जाएगा. आप दीवार में रख सकते हो, वॉल में चिपका के रख सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो, मोबाइल में रख सकते हो, ताकि द मोमेंट व्हेन यू थिंक दैट यू आर फॉरगेटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन यू विल रिमेंबर थिंग्स जस्ट बाय सीइंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. दिस इज हाउ यू शुड लर्न. ओके, never let the graph going back to zero. Then again you need to study from the very beginning, so you don't let the graph smashed into the zero, right? So don't let your information like become a big zero, right? So you need to maintain that strategy. Now देखो, एक नया चैप्टर जब पढ़ने जा रहे हो तो क्या कैसे पढ़ता है. मैं जब स्टूडेंट था मैं क्या करता था, एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था और टूवर्ड्स एंड में जाता था. लेकिन अगर आप स्मार्ट होते हो और आपको पता है कि कैसे सीखता है, तो आप क्या करोगे ना, उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है आप वो पहले देखो, और यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट आर द की एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस, राइट? द मोमेंट व्हेन यू ओपन द चैप्टर, देन दिस इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द एंड ऑफ द चैप्टर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी नीड टू फोकस दैट. यू डोंट नीड टू फोकस एवरीवेयर, राइट? इन एवरी सिंगल चैप्टर लाइक 5 to 10 ऐसा कुछ टॉपिक होगा जहाँ पे आपको फोकस करना है, बाकी चीज़ों में फोकस नहीं करना है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड ये सब अगर नहीं करना है तो कुछ ऐसे लोगों से सीखो जिसको एक्सपीरियंस है उस सब्जेक्ट में, राइट? सो ऐसा कोई है अगर तुम्हारे आसपास में जो जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया है, तो उससे सीखो. ये थोड़ा ये प्रोसेस को फास्ट कर देगा, लर्निंग प्रोसेस को. ओके, सो दैट्स व्हाई टीचर्स, ट्यूटर्स, मेंटर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे हैव द पास्ट एक्सपीरियंस एंड दे नो where to focus and where to spend your energy. It's not like everybody needs to spend your energy, right? So मुझे तो ऐसा, I mean, all the books are available in the market. I just don't like them because they have stressed all the energy in every single pages. This is not how a book should be written. A book should be written in such a way that you need to focus on these 5 points, these 5 key points. You understood those 5 key points. You have learned those 5 key points. Then these are the applications. This is how I think science should have been taught. Okay, so let's move on to the second point. So सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ना कुछ यूनिवर्सल टूल बॉक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखना है. यूनिवर्सल चीज़ें, यूनिवर्सल टूल बॉक्स, व्हाट आर दोस? नंबर 1 इज द पब्लिक स्पीकिंग. लेट मी टेल यू माई स्टोरी अबाउट पब्लिक स्पीकिंग. देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, व्हाट यू गोइंग टू बी इन फ्यूचर, पब्लिक स्पीकिंग इज द स्किल यू शुड एक्वायर. कुछ भी बनने वाले हो ना आप फ्यूचर में, पब्लिक स्पीकिंग चाहिए आपको. कोई फैमिली फंक्शन में हो, कोई शादी में हो, कोई पूजा में हो, कहीं पे अगर एक प्रोफेसर हो, आप कोई टीचर हो, कोई लेक्चरर हो, एनीवेयर, पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्किल एवरीवन शुड मास्टर. नंबर 1 यूनिवर्सल टूल बॉक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स नॉट इरेस्पेक्टिव साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, व्हाटएवर. नंबर 2 इज the presentation skill. Making a good presentation, PowerPoint हो या WPS Office हो, whatever, is a essentially mandatory skill everyone should acquire by the time they are student in class 11, 12 standard or college. बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है तुमको प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना. मैं इस सारे टॉपिक में, यूनिवर्सल टूल बॉक्स में एक दिन डिटेल में जाऊँगा और बताऊँगा सारी चीज़ें. नंबर 2. नंबर 3 है, मुझे ऐसा लगता है वीडियो एडिटिंग स्किल इज़ इंपॉर्टेंट. बिकॉज आज की डेट में आप अगर देखोगे कुछ भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो तो आपको वीडियो और ऑडियो इसके माध्यम में मतलब शेयर करना पड़ेगा. तो इसलिए बेसिक एडिटिंग स्किल्स, नॉट लाइक हाई फाई वीडियो एडिटिंग स्किल, यू नीड बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल, और यू नीड टू convey your messages. Yes, if you are in Mac, Final Cut Pro, if you are in Windows, Premiere Pro or DaVinci Resolve, those are the popular apps. You can get cracked version because you are a student and learn the basic things, and then if you become professional one day, then purchase the full version. But before that, understand and learn how to do the very basic editing. Okay, so number 3. Number 4 is the coding skill. Actually, I don't know that much the coding skill. I don't have that much coding skill. During the time when I was in masters, our teacher were forcing us to learn the coding in Fortran and the C++. लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि क्या ही कर लेंगे हम कोडिंग स्किल सीख के. तो मैंने इतना फोर्स नहीं दिया था, इतना प्रेशर नहीं लिया था ये सीखने के लिए. और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीख लेना चाहिए था. और मैं अभी थोड़ा पाइथन सीख रहा हूँ, और इतना टाइम तो नहीं मिलता है लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. बेसिक कोडिंग स्किल्स मैंडेटरी है ये सब के लिए, क्योंकि नेक्स्ट 5 to 10 years AI and machine learning going to take
ऑल दी बेसिक जॉब्स. सो आप अगर बैक एंड में उसको मास्टर कर सकते हो ना, आई मीन AI एंड मशीन लर्निंग, उसका कोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ, देन तुम्हारा जॉब सिक्योर होगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल टूल बॉक्स है जिसको आपको सीख लेना चाहिए. नंबर 4, द नेगोशिएशन स्किल. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्किल यू शुड लर्न. सो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा स्टोरी बोलता हूँ. तो जब भी मैं किसी से बात करता हूँ नेगोशिएशन, आई मीन एनी टॉपिक, व्हेनेवर आई डिस्कस विद एनीवन, मैं ना ये समझने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाले जो बैठे हैं उसको क्या चाहिए. What are the pain points? What are the things they want but they are not getting it? If I understand their pain point, and if I understand what are the things they are trying to achieve but they are not getting it, then it is very easy for me to do the negotiation, because I'm going to offer the exact same thing what they want. And if you do that, then most of the negotiation, I mean most of the conversation and the negotiation, you're going to rock. So this is another skill you should learn, negotiation skill, and genuinely understanding people, they are thinking, they are believing, what they are asking for, what are the pain points, what are the solution you can provide. These are the things that will enrich your negotiation skill. Okay, so these are the universal toolbox, 5 toolbox I have shared. Now next one is the, yes, if I would have been a student, मैं क्या करता था, मैं जब स्टूडेंट था, मैं उन सारी ग्रुप में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा था जिसमें एक्चुअली मैं फिट नहीं करता था. तो मैं फोर्स करता था कि चलो इन लोगों के साथ ही चलते हैं कि क्योंकि कूल है ऑल दैट स्टफ. लेटर ऑन आई हैव अंडरस्टूड दैट आपका गट फीलिंग जो बोल रहा है ना कि इन लोग, मतलब ये ग्रुप अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो उससे बाहर निकल आओ, irrespective of anything, right? You don't need to force your instinct believe to fit in somewhere where you are not a good option. You are not a good option. तुम्हारे लिए वो ठीक अगर नहीं लगता है ना, तो वो ग्रुप से निकल आओ, बाहर निकल आओ, और दोस्त मिल जाएंगे, और ग्रुप्स मिल जाएंगे. तो जहाँ पे आप फिटिंग नहीं करते हो वहाँ से निकल आओ और तुमको अच्छा ग्रुप मिल जाएगा. लाइक फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, ये सारी चीज़ें बहुत ही इमैच्योर है. आप कहीं से लेफ्ट आउट नहीं होगा, आप कहीं से भी लेफ्ट आउट नहीं होंगे. जो भी आपके टाइप के हैं उनके साथ दोस्ती करो. तो ये वाला चीज़ करो, जहाँ पे आप फिट नहीं होते हो वहाँ से आप एग्जिट ले लो. ये 3 था. नंबर 4, इफ you have couple of friends, those who suck energy from you, just delete those friends. Okay, just delete those friends, just get rid of those friendship whether you believe that they are your friends. You know that, you intrinsically know that they are not your friends, they are just energy sucker. I mean आपको पता है किन लोगों के साथ जब आप रहते हो आपको एनर्जी ज़्यादा महसूस होता है और किन लोगों के आपको एनर्जी डाउन फील होता है. तो जिनके साथ एनर्जी थोड़ा हाई रहता है उनके साथ ही घूमिए, उनके साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए. और जिनके साथ एनर्जी लो रहता है आपको, आई मीन यू फील लाइक लेफ्ट आउट, डेफिनेटली गेट रीड ऑफ दोज पीपल, डिलीट दोज पीपल फ्रॉम लाइफ. चाहिए नहीं उनको आपके लाइफ में. वो किसी और के लिए सही होगा, आपके लिए सही नहीं है, तो उनको छोड़ दो. ओके, सो ये था नंबर 4 आई थिंक. एंड लास्ट वन, लर्निंग बेसिक्स ऑफ द इन्वेस्टिंग योर मनी. आई नो यू डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट, राइट? You don't need enough money to invest. मैं क्या बोल रहा हूँ, just taste the skin in the game. What does it mean? That means आज की डेट में अभी इन्वेस्टिंग बहुत ईजी हो गया, राइट? आप अगर लाइक 200-500 रुपए से ये चेक कर सकते हो कि आपका इंट्यूशन कैसे है. और लर्निंग, आई मीन लर्न द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी इन वेरियस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट. लर्न दोज थिंग्स. आई वुड हैव इफ मैं 18 साल का होता आज, तो मैं 18-19 से स्टार्ट कर देता. आई मीन लर्निंग, इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टिंग. 18-19 साल में इतना पैसा नहीं होता है आपके पास, लेकिन आप अगर लर्निंग स्टार्ट कर देते हो ना, तो कुछ दिन बाद, आई मीन व्हेन 21, 22, 23, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द योर वेरी फर्स्ट जॉब, देन आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस होता. वही चाहिए. मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था 24 ईयर से. व्हेन आई वाज इन 24 years old, देन आई हैव स्टार्टेड माई इन्वेस्टिंग जर्नी. बट मुझे ऐसा लगता है कि 18-19 ईयर से आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीख लेना चाहिए. मतलब सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द लाइक पी रेशियो, पीबी रेशियो, व्हाट आर द बेसिक, आई मीन CAGR, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, हाउ स्टॉक्स वर्क, व्हाट आर द कंपनीज, हाउ दे आर मेकिंग प्रॉफिट, हाउ स्टॉक मार्केट गोइंग अप एंड डाउन, bear market, bull market, and technical analysis, basic things. If you understand, then in long run, the moment when you start earning, then you will have a decent understanding over your peer group. ये बहुत ही अच्छी बात है. मैं अगर सीख लेता थोड़ा सा, तो मैं अपनी पीयर ग्रुप से बहुत ही आगे निकल चुका होता. एंड वन मोर थिंग,
जॉइंट के लिए, नीट के लिए आप ईयर ड्रॉप तो दे सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 1 year. I mean, you should have a plan B, and you should not waste more than 1 year of your life, because joint and NEET are not everything. You are more than that, right? You can try again, but you should get admission to a decent college. Then you should try for the second time or third time. ये वेरी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन है आपके लिए. तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. मैं अगर एक स्टूडेंट होता तो मैं ये सारी चीज़ें करता. ये अभी तक तो मुझे ये सब याद आ रहा है. अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बनाऊँ तो आपको मिल जाएगा. एंड अगर till now you're watching the video, enjoying the video, please like the video, and it will reach more audience. Thank you so much for tuning in and signing off. Thank you so much.